ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਈ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕਈ ਥ੍ਰੈਟ, ਕਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ। ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਫੰਡ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂ PR ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਲੈਂਡਿੰਗ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਰਨਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ PR ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਜੋ ਕਿ CICC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ 100% ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਅਸ ਜੀ। ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੀਆਂ चीज़ों के आधार पर करता है? देखिए रणवीर जी, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले परसेप्शन ये थी कि स्टूडेंट शायद ये देखता था कि रेगुलेटेड कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में जो है वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। स्टूडेंट को डोर स्टेप सर्विसेज मिल रही हैं, उनके अपने सिटी में, अपने टाउन में काफ़ी सारे ऐसे कंसल्टेंट्स बैठे हैं जो डिफरेंट ऑफर्स के साथ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और एक सीधा साधा उनको जो है वो ऑफ़र यही दिया जाता है कि यू जस्ट गेट एनरोल्ड विद अस और हम आपको वीज़ा ला के देंगे। सो इस तरीके के ऑफर्स उनको जब मिलते हैं तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैजल नहीं करना चाहता, एक्स्ट्रा कुछ R&D नहीं करना चाहता, अपना टाउन छोड़ के और कहीं जाके रेगुलेटेड कंसल्टेंट की सर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट को कमिटमेंट चाहिए कि मुझे वीज़ा मिलना चाहिए। सो उसी चीज़ पे स्टूडेंट जो है वो अपने आप को रजिस्टर करता है, बिना ये देखे हुए, बिना ये जाने हुए कि कंसल्टेंट उसका एक कंप्लीट पैकेज है भी या नहीं, क्या उसको सही रेलिवेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसकी एप्लीकेशन को सही तरीके से कंपाइल किया जाएगा, क्या वो इतना क्वालिफाइड प्रोफिशिएंट है कि उसकी एप्लीकेशन को सही तरीके से लगा सके, उसके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को जस्टिफाई कर सके। सो इन सब चीज़ों को स्टूडेंट जो है वो इग्नोर करता है, सिंपली इस कमिटमेंट पे कि आपको वीज़ा हम दिलवा के देंगे। सो यही जो प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम आज की डेट में फॉलो हो रही है, पर्टिकुलरली पंजाब, हम जिस स्टेट में बैठे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्टूडेंट्स का बाहर जाने का। सो मुझे फिर भी यही कहना है कि एक बहुत कम रेशो एक ऐसा है जो बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो एक प्रॉपर रिसर्च करके आते हैं और जो ये चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन एक रेगुलेटेड लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के थ्रू लगनी चाहिए। बट अदरवाइज एक मैक्सिमम लोट ऐसा है जो ब्लाइंडली अपनी एप्लीकेशंस को हैंड ओवर करता है, और उन लोगों के पास अपनी एप्लीकेशन का किसी तरीके का कोई एक्सेस नहीं होता। दे डोंट नो दैट व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर देयर इन देयर एप्लीकेशन, कौन से कॉलेज में किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन कौन से प्रोग्राम के लिए लगाई जा रही है। सो अल्टीमेटली ये एक तरीके का एक गैम्बलिंग है मुझे लगता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोगों को ये चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा,
किस तरीके से एप्लीकेशन लगाई गई है उसका कोई आइडिया नहीं है। सो एक रिस्क पे स्टूडेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन को हैंड ओवर करता है, एंड वी हैव सीन कि इस प्रैक्टिस में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अच्छी प्रोफाइल्स भी जो हैं वो मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रिफ्यूज़ होते हैं। सो ये एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे मैं मिलती हूँ इस तरीके के जो अच्छे प्रोफाइल होने के बावजूद सफ़र करते हैं। मेरा ओपिनियन यही है, ये जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ओपिनियन यही है मेरा स्टूडेंट्स को कि आप थोड़ा सा अपने शेल से बाहर निकलें, थोड़ा एक्सपोजर लें, रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को फाइल करें। आपको अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से कंपाइल किए गए हैं, गैप्स को किस तरीके से वर्कआउट किया गया है, कहीं आपकी जेन्युइन ऑथेंटिक एजुकेशन को हाइड तो नहीं किया गया। सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਨੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦੇਣਾ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਚੈलेंजेस, ਕੀ थ्रेट, ਕੀ डर ने ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ? देखिए रणवीर जी, ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कुछ अगर हाइड करते हैं या कुछ बच्चों की अगर एजुकेशन हाइड की जाती है तो उनको वीज़ास नहीं मिलते। डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लिक कर जाते हैं, हाँ, आ जाता वीज़ास वीज़ा। मिल जाते हैं। लेकिन पोस्ट लैंडिंग जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है फॉर श्योर। आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप गए हैं, कॉलेज के लिए गए हैं, लेकिन व्हेन यू कम टू द सिचुएशन जब आपको पीआर फाइल करनी है और आपकी जो इंडियन जेन्युइन एजुकेशन है उसको हाइड किया गया है, या आपके गैप्स जो हैं वो उनको एक इररेलेवेंट तरीके से क्रिएट किया गया है, किसी भी वेंडर से आपका एक्सपीरियंस बना के उसको आपकी एप्लीकेशन में लगाया गया है, या बहुत सारे ऐसे केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पे आपके गैप कवर करने के लिए लोकल काउंसिल के सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं, या डिग्रीज जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस से बना के आपकी एप्लीकेशन में लगाई गई हैं। अल्टीमेटली जब आपने अपना एप्लीकेशन पीआर के लिए फाइल करना है, आपको अपनी इंडियन एजुकेशन का भी एक असेसमेंट चाहिए, जिसको हम ईसीए कहते हैं। सो ये चीज़ें फिर वो थ्रू नहीं हो पाती उस स्टेज पे जाके, और आप अपने पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा का फर्स्ट स्टेज पार कर लेते हो, इट डजंट मीन कि आप पीआर के लिए भी आपको कुछ हेजल्स नहीं होंगे। सो हम माइक्रो ग्लोबल की तरफ से यही हमारा एक ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट ओपिनियन रहता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक ऑथेंटिक एजुकेशन है उसको हाइड नहीं किया जाए। आई हैव वन एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं डेली बेसिस पे हम मिलते हैं। आई हैड वन स्टूडेंट डे बिफोर यस्टरडे, पटियाला से स्टूडेंट था जिसने मास्टर डिग्री होल्डर स्टूडेंट था, 2020 में मास्टर किया था उसने, और किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो सीधा सीधा कंसल्टेंट की तरफ से उसको ये एडवाइस दे दिया गया कि आप मास्टर डिग्री हाइड कर दो। क्या बात है। सो 2020 में पास किया है, 2020 से लेके 22 तक का एक गैप हो गया, फिर जो 2 साल की मास्टर की है वो एक और गैप हो गया। एंड ऑब्वियसली आई नो कि वो गैप जो बना है उसको कवर अप करने के लिए कंसल्टेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। 10-20-30,000। हाँ जी, एक उसका गैप कवरिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। सो ये चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। एक और एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट, सपोज ग्रेड 12 स्टूडेंट है जिसने 2020 में पास किया है, उसके बाद उसने इंडिया में अपनी किसी डिग्री में एडमिशन ले लिया, साइड बाय साइड ही वो सर्चिंग आउट सम गुड कॉलेज कोर्स इन कनाडा। सो जब आज की डेट में जब उसका एप्लीकेशन लगाना है तो जो डिग्री उसने यहाँ पे कंटिन्यू की है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो भी कंप्लीट किया है, उसको आपकी एप्लीकेशन से हाइड किया जा रहा है, विच इज़ नॉट जेन्युइन। आप अपनी इंडिया में जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर अपनी ग्रेजुएशन का कंटिन्यू आप कर रहे हो, या सेकंड सेमेस्टर जहाँ पे भी आप पहुँचे हो, आपको शो करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन में। यू मस्ट इंडिकेट टू द वीज़ा ऑफिसर कि आप अपनी एजुकेशन के साथ इन टच थे, आपने ग्रेड 12 के बाद अपना एडमिशन यहाँ किसी कॉलेज कोर्स में ले रखा है, साइड बाय साइड यू वर प्लानिंग योर एप्लीकेशन टू कैनेडा। सो वो गैप भी आपका कवर अप हो जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन की जो ऑथेंटिसिटी है, आपका जो डेडिकेशन है एजुकेशन को लेके, वो भी शो होगा और जेन्युइन प्रोफाइल रह जाएगा। सो ये चीज़ों में किसी तरीके का कोई हार्म नहीं है। सो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये चीज़ लॉजिकली अंडरस्टैंड करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द ओरिजिनल एजुकेशन और शोइंग समथिंग फेक। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 80-85% ਵਾਲਾ, 7 ਬੈਂਡ 6.5 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 50% ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ 80% ਵਾਲਾ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्टूडेंट ਨੂੰ, मानसिकता किधर है? कुछ तो मुझे लगता है कि गो विद फ्लो वाला सीन है पंजाब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक चेन बना हुआ है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर का कहीं से वीज़ा लगता है तो आपके जो भी नेक्स्ट आपकी जो भी जनरेशन्स हैं अपनी एप्लीकेशन उन्हीं कंसल्टेंट्स के थ्रू, उन्हीं एजेंट्स के थ्रू लगाएंगे। सो एक ये वाला कल्चर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। ये नहीं देखा जाता कि जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो एक एजुकेटेड कंसल्टेंट है या नहीं, आपको वीज़ा दिलवा पाएगा, उसको नॉलेज है, उसके कनाडा में कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट टाइप्स हैं या नहीं है। सो ये चीज़ों को स्टूडेंट बिना सोचे समझे अपनी एप्लीकेशन जो है वो हैंड ओवर करता है किसी भी गलत जगह पे। सो ये आपको सफ़र करवाती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। और बिफोर द शो जस्ट अभी एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल केस हम लोगों के पास आया है। जॉर्जियन कॉलेज से रिफ्यूज स्टूडेंट है सितंबर इनटेक के लिए, 6 इन ईच एसडीएस प्रोफाइल है, A+ वाला प्रोफाइल है उस स्टूडेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स A+ वाला प्रोफाइल है, कंप्यूटर साइंस। सो वेरी ब्रिलियंट केस। मुझे लगता है कि ब्लाइंड आइज के साथ भी उसका एप्लीकेशन फाइल किया जाए तो उसको वीज़ा मिलेगा जॉर्जियन कॉलेज के लिए। सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या किया गया उसकी एप्लीकेशन में जो उसको वीज़ा नहीं मिला। हालांकि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में अपने लिए एडमिशन लिया है, सिक्योर किया। जॉर्जियन इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ ओंटारियो प्रोविंस, उसके बावजूद उसका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ। इट सिंपली शोज़ कि ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। हाँ जी। सो इट सिंपली शोज़ कि उसकी एप्लीकेशन में जो भी उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसमें डेफिनेटली जो है वो कमियां रही होंगी। आपके एजुकेशन एजेंडा को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया होगा। आई हैव सीन मैनी केसेस जहाँ पे इतने पुअरली तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल किया गया होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को सही तरीके से जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया होता। सो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपके अच्छे प्रोफाइल्स को रेफ्यूज़ करते हैं। मोर ओवर आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जो कवर स्टेटमेंट है, वो एक बहुत ही डिक्लेयर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत क्लियर नीट एंड क्लीन फॉर्मेट, कंपैक्ट होना चाहिए एप्लीकेशन। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 4 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 8 ਤੇ 16 ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ? ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਔਰ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਪੰਥੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, पढ़ाई करता है, नाल काम करता है, किहड़ियां स्टेजां दे कित्थे कित्थे गलती करता है? देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो इंडिया से ही गलती की जाती है जब आप सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन को किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास हैंड ओवर नहीं करते, और जब आप इस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि आपने अपना एप्लीकेशन दे दिया है, अब वीज़ा लगवाना, लगा के देना कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे बड़ी गलती है। आपको ये जजमेंट ज़रूर करनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है, सही कॉलेज में सही रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए आपकी एप्लीकेशन डाली जा रही है नहीं, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं की जा रही, जो ऑथेंटिसिटी है आपकी एप्लीकेशन की वो मेंटेन हो रही है नहीं। सो जब आप ये चीज़ें जजमेंट नहीं करते, इन चीज़ों का एक्सेस नहीं लेते, वो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की रहती है। सम हाउ अगर आपका वीज़ा इस मिस्टेक के बाद लग भी जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि केस निकल गया है, कनाडा भी हम लोग इसी तरीके से आगे मेंटेन कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, तो ये एक सेकंड स्टूडेंट का जो है वो एक गलत परसेप्शन है। व्हेन यू लैंड ओवर देयर इन कनाडा, जब आप जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि आप कनाडा पहुंचने के बाद उनका एजेंडा ये होता है कि अकोमोडेशन मिले और फिर काम देखा जाए, ना कि कॉलेज देखा जाए। सो मेरा ओपिनियन स्टूडेंट्स को ये भी है कि जब आप कनाडा पहुंचते हैं, आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यू गो टू द कॉलेज, यू ज्वाइन योर ओरिएंटेशन। आप जाके अपना ओरिएंटेशन ज्वाइन करें। ओरिएंटेशन अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ओरिएंटेशन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का पैकेज है जिसमें आपको कनाडा का कल्चर, कनाडा में आपकी सेटलमेंट, आपका एकोमोडेशन, आपका खाना पीना, रहन सहन, आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, आपका एजुकेशन, आप कहाँ से बस स्टॉप
आपके लिए कन्वीनियंस क्या है। सो हर चीज़ जो है वो आपको ओरिएंटेशन में समझाई जाती है, सिटी का टूर दिया जाता है आपकी अकोमोडेशन के लिए। सो अगर आप ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं, आपको ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। जी। जब स्टूडेंट ओरिएंटेशन अटेंड नहीं करता, सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी रह जाती है स्टूडेंट की, आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको किस तरीके से कॉलेज में अपनी एजुकेशन को शुरू करना है, किस तरीके से एनरोलमेंट्स आपकी होंगी, या इसके अलावा जो स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ आपका जो 20 घंटे काम करने की परमिशन है, आप किस तरीके से, कौन से सर्कमस्टांसेस में, कौन से एरियाज़ में काम कर सकते हैं। सो ये बच्चे सारी चीज़ें मिस करते हैं। और आप पीआर के लिए किस तरीके से मेंटेन करेंगे अपने प्रोफाइल को, ये सब चीज़ें आपको ओरिएंटेशन में समझाई जाती हैं। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਲਤ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਫੰਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਾਲੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ SDS ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਪੰਥੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂੰਛ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ 2011 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਮ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 11 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਦੀ, ਮਾਣ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਐਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲਓਗੇ। ਕੋਰਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, PR ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਧਰ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। हाँ जी, बिफोर आई टेल यू दिस थिंग, मैं एक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और चीज़ भी कहना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स को बहुत जेंटली अपनी एप्लीकेशन के लिए वर्कआउट करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सीधा सिर्फ यही आपको एक एजेंडा दिया जाता है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा एंटर करना है, लेकिन स्टडी कैसे करनी है या किस तरीके से वाइट कॉलर जॉब को टारगेट करना, ये नहीं सिखाया जाता, ये नहीं समझाया जाता। सो मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को बता दूँ कि अगर आप सही कोर्सेज चूज़ करते हैं, अगर आप टेक्निकल ट्रेड कोर्सेज चूज़ करते हैं, रेलिवेंट कोर्सेज चूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आप कनाडा जाके अपने लिए बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट बना सकते हैं। आई हैव मैनी केसेज जिन लोगों ने डिफरेंट कॉलेजेस से अच्छे ट्रेड टेक्निकल प्रोग्राम्स किए हैं। यू वॉन्ट बिलीव, ऐसी भी जॉब्स हैं कनाडा में जहाँ पे $40, $50, $60 पर आवर आप अर्न कर सकते हैं। और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, 2 साल के डिप्लोमास हैं। आप मैकेनिकल के कोर्सेज के लिए जाइए, मोटी पावर टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल जैसे कोर्सेज के लिए। अगर आप ग्रेड 12 नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी रेंज है स्टूडेंट्स के लिए, अवेलेबल है टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए। और इन ट्रेड टेक्निकल प्रोग्राम का बहुत बड़ा स्कोप है कनाडा में। लेकिन मैं ज़रूर कह दूं कि ग्रेड 12 नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से कंप्यूटर और IT के प्रोग्राम्स को टारगेट करता है। वो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल जैसे स्ट्रीम्स को लेना ही नहीं चाहता, ये माइंडसेट बना के कि ये हार्ड कोर्सेज हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बट आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इफ़ यू स्पेंड टाइम इन स्टडिंग दीज कोर्सेज, आपके जो प्रॉस्पेक्ट हैं वो बहुत ब्रिलियंट हैं। मेरे अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं। आई हैव अ स्टूडेंट जो $60 पर आवर्स मोटी पावर टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद ले रहा है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।